So good morning, everyone. Today we all are here for the practical activity of AI and IT both. Okay. So this month we are not going to cover any theory topic. This whole month we will be covering only practical things. So we have 4 weeks in a month and we will be doing four different practical activities. Okay. So आज का हमारा topic है the first one, that is MIT App Inventor. So maybe some of you would have known about MIT App Inventor and कुछ के लिए वो new होगा. So that's completely okay. We are going to start from the very initial part. MIT App Inventor होता क्या है? Okay, तो कैसे उसको open करेंगे? So you have to go for the Google search. Then just type MIT App Inventor. Okay. And when you will be searching MIT App Inventor, the first of the link, that is https://appinventor.mit.edu. Just click on that and this platform will be open. होता क्या है MIT App Inventor? तो MIT App Inventor is a high-level block-based visual programming language which was originally built by the Google, but अभी उसको कौन maintain करता है? अभी उसको Massachusetts Institute of Technology manage करता है. Originally उसको Google ने build किया था. So it allows newcomers to create computer application for two operating systems, Android and iOS. यानी कि with the help of MIT App Inventor, whatever you will be building, you will be creating, that can work on Android device as well as on the iOS device. ठीक है, तो कैसे create करते हैं, क्या करते हैं? इसमें हम apps create करेंगे, कैसे करेंगे? So we'll be learning that. So first of all, you have to click on this create apps. जब आप MIT App Inventor open कर लेंगे, you have to go on the create apps. So click on that. Create apps पे click करने के बाद this will be opening a pop-up. ये pop-up है आपका. Welcome to App Inventor. This one. ठीक है. From here you have to continue with this button. ये pop-up हर बार open होता है जब भी आप MIT App Inventor open करते हैं. Every time this pop-up will come. So you just have to click on this continue. Okay. And this is the main dashboard. So after coming here, you can go for the new project. So click on the projects. Here, the first event thing is on the dashboard. Click on the projects. So it will show a drop down menu here. My projects, जहां पर आपके पुराने सारे जितने भी projects आपने build किए हैं वो हैं. And start a new project and different things. So as we are going to start a new project, click on this start new project. You have to give a project name first of all. जैसे ही आप start करेंगे, you have to give a project name. Okay, so let's see my first app. Okay, and just click on okay. So it will be loading and here is your first app. And you can see जो हमने name दिया था, that is visible on the leftmost side of the dashboard. जो भी आप अपने ऐप का नाम देंगे वो ऐप का नाम आपका यहाँ पर विजिबल होगा completely. ठीक है, so it's your choice that what name you want to give to your project. Okay, we are learning the first app, that's why I have given this first app name. अभी हमारे डैशबोर्ड पे 4 things होती हैं. We have 4 things on the dashboard. First one is palette, you can see this. The second one is viewer, which is this part. Third one is all components, which is this part, and the properties on the rightmost part. So what are the different parts? ये क्या है चारों different part? So the palette is a palette of everything that can be used in the MIT app. यानी कि जितने भी different blocks, applications, different elements, items जो भी हम अपने app में use कर सकते हैं, everything is given in the palette. Everything is here. We just have to go to that particular part, choose that and use that in the app design. The second one is the viewer part. What is viewer part? Viewer में हम जो भी create करेंगे, everything will be visible on the viewer part. Here, Android app बना रहे हैं ना, so that's why एक phone यहाँ पर show किया हुआ है. You can see that.
तो जितनी भी चीजें हम एड ऑन करेंगे पैलेट से, जो भी डिजाइनिंग हम करेंगे, एवरीथिंग विल बी विजिबल हियर इन द सेम फॉर्म विच विल बी विजिबल इन द फाइनल ऐप। तो आपको यहाँ से इमीडिएटली आइडिया होता जाता है कि ओके हमारी इस डिजाइनिंग का कैसा इम्पैक्ट होगा, कैसी विजिबिलिटी होगी। एवरीथिंग कैन बी सीन हियर। ओके, द थर्ड वन इज ऑल कंपोनेंट्स। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, ये पैलेट तो कंप्लीट पैलेट है, जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, एंड वन टाइम एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। बट ऑल कंपोनेंट्स में जितनी चीजें हम अपने ऐप में यूज कर रहे हैं, दैट लिस्ट विल बी हियर। whatever thing is used in our app, everything will be seen here। जैसे अभी हमने ऐप में कुछ भी नहीं डाला, ओनली स्क्रीन 1 है जो कि ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है स्टार्ट होते टाइम, तो यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन 1 विजिबल है। And as soon as we will be adding different elements from here, everything will be mentioned here। यानी कि all components is a complete list of used items in the app। Clear? And the last है हमारा प्रॉपर्टीज। तो जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट की या कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं या जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर नाउ इट्स स्क्रीन 1, नथिंग एल्स इज हियर। सो फॉर स्क्रीन 1 व्हाट आर द प्रॉपर्टीज हियर? सो वी कैन सी दोज प्रॉपर्टीज हियर। स्क्रीन 1 की अपीयरेंस क्या है? अबाउट स्क्रीन। अलाइनमेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, लेफ्ट में है, टॉप में है, राइट? बैकग्राउंड कलर क्या है? बैकग्राउंड इमेज क्या है? what are the screen animation, what are the screen orientation, टाइटल विजिबल है या नहीं, क्या टाइटल है, एवरीथिंग इज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्रीन 1। एंड जैसे ही हम कोई दूसरा एलिमेंट इसमें यूज कर लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सी स्क्रीन 1 में आई एम गोइंग टू एड फर्स्ट ऑफ ऑल अ बटन। सो यू कैन सी on the user interface part there is a button option। okay, so let's just drag and drop a button here। To use these palette elements or components, we have to drag and drop the particular element to the screen। तो मैंने क्या किया? Because I'm going to use a button, I just dragged and dropped a button component from the palette to viewer part। Okay, and you can see जैसे ही मैंने बटन यहाँ पर एड ऑन किया, ड्रैग किया, in all components a button 1 is visible here। करेक्ट? तो जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को इसमें यूज करते जाएंगे, ड्रैग करते जाएंगे, एवरीथिंग विल बी विजिबल ऑन द ऑल कंपोनेंट्स पार्ट। करेक्ट? अब क्योंकि हमने बटन 1 पे हैं अभी हम, अगर मैंने स्क्रीन 1 पे क्लिक किया तो स्क्रीन 1 की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, यू कैन सी दैट। नाउ इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस बटन 1, बटन 1 की प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। सो यू कैन सी बटन 1 में क्या फॉन्ट है, फॉन्ट को बोल्ड करना है, अगर करना है कर देते हैं, यस। यू कैन सी जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, द टेक्स्ट इज बोल्ड नाउ। जैसे ही हमने फॉन्ट को इटैलिक करना है, क्या करेंगे हम? फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए हम क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी द टेक्स्ट इज इटैलिक नाउ। क्लियर? दिस इज द फॉन्ट साइज। दिस इज ऑटोमेटिकली ऑन 14। आई वांट टू increase this, I'm writing 30 here, font size, and it will be increased। font typeface, font का height, font का width, image, if you want to keep an image on the background of the button, shape, क्या shape है, default क्या था, ये हमने जो अभी साइज चेंज किया था, यू कैन सी द फॉन्ट साइज इंक्रीज्ड। ओके, शेप में अभी क्या है, रेक्टेंगुलर है डिफॉल्ट में, एंड इफ यू वांट टू चेंज इट, मुझे राउंडेड करना है, रेक्टेंगुलर करना है, ओवल करना है, लेट्स से ओवल करते हैं, यू कैन सी द टेक्स्ट बटन इज नाउ ओवल। ठीक है, क्लियरली आपको स्क्रीन ओरिएंटेशन, स्टेटस बार, विजिबिलिटी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। तो अब ये डिजाइनर की चॉइस है, इफ यू आर मेकिंग एन ऐप, इट्स योर चॉइस कि आपको किस डिजाइन में, किस टेक्स्ट में, किस ओरिएंटेशन में, किस अलाइनमेंट में अपना बटन या अपना टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, इमेज, लेबल, जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं, वो आपको किस अलाइनमेंट में अपनी स्क्रीन पर लगाना है। राइट? सो इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस ओवल, यू कैन चेंज दिस, just go there,
स्क्रीन एनिमेशन कैसा चाहिए आपको? डिफॉल्ट, फेड, जूम, साइड हॉरिजॉन्टल, साइड वर्टिकल, दिस इज द स्क्रीन एनिमेशन, करेक्ट? बैकग्राउंड इमेज, इफ यू वांट टू चूज एनी बैकग्राउंड इमेज, आप यहां से उसको अपलोड कर सकते हैं. सो जस्ट चूज एनी इमेज जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है, या आप सिस्टम से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से. डाउनलोड करने के बाद यू कैन अपलोड दैट फाइल फ्रॉम दिस अपलोड फाइल बटन, क्लिक ऑन ओके, और वो आपका बैकग्राउंड इमेज बन जाएगा इस ओवल शेप, राइट? अभी हमारा टेक्स्ट बड़ा लग रहा है, ओवल छोटा लग रहा है. हम क्या कर सकते हैं? हम इसके साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं. सो लेट्स से इफ आई एम सेइंग इट इज 20, सी the text size is decreased from here. If you want कि oval is not looking good, you can just go for the shape and do rounded. See, so this is the rounded type of button. तो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज का पार्ट है ना, इट इज क्वाइट सिमिलर फॉर ऑल एलिमेंट्स. इट्स देयर इज जस्ट वन डिफरेंस कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमको रिक्वायर्ड होंगी किस पर्टिकुलर एलिमेंट पर. लाइक अभी बटन पे हमको उसने दिया है कि हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, करेक्ट? हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं. बट इफ वी आर यूजिंग एन इमेज, देयर इज एन इमेज कंपोनेंट टू. सो लेट्स से आई एम यूजिंग एन इमेज हियर. अभी इमेज की प्रॉपर्टीज पे आ गए. अब इमेज में तो हमें टेक्स्ट चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है. देयर इज नो नीड टू चेंज एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन इमेज. सो दैट प्रॉपर्टी विल नॉट बी हियर. यू कैन चेक दैट. क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपका इमेज का हाइट है, इमेज का विड्थ है, आप इमेज में कौन सा पिक्चर लगाने वाले हैं, उसका रोटेशन एंगल क्या है. रोटेशन एंगल मीन्स कि कितने एंगल पर रोटेट करके आपको उसको अपने ऐप में यूज करना है. बट यहाँ पर आपको टेक्स्ट चेंज की प्रॉपर्टीज या उस टेक्स्ट का फॉन्ट की प्रॉपर्टीज, इटैलिक प्रॉपर्टीज, वो सब आपको नहीं मिलेगा. तो पर्टिकुलर एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड वी कैन चेंज देम अकॉर्डिंग टू द requirement, and everything that we are going to use will be visible on the all component part. I hope yahan tak sabko clear hai. Now let's see, we are going to take an label. हमने क्या क्या लिया है अभी? हमने एक बटन लिया, एक इमेज लिया, अभी हम ले रहे हैं एक लेबल. So what is the difference between button and label? बटन में क्या होता है? when we click on the button, it navigates us to the another screen. आप जब भी किसी बटन पे क्लिक करते हो, इमीडिएटली आप कहीं और चले जाते हो ना, बिकॉज इट नेविगेट्स अस टू दैट पर्टिकुलर स्क्रीन जहां पर हम उस बटन की हेल्प से जाना चाहते हैं. बट व्हाट इज लेबल? लेबल ऐसा नहीं होता है. लेबल इज जस्ट अ टेक्स्ट फॉर्म. वहां पर आप एक टेक्स्ट राइट डाउन करते हो विच इज ऑलवेज विजिबल देयर ओनली. ठीक है? तो लेबल में भी अब क्योंकि टेक्स्ट है तो डेफिनेटली टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज होंगी. क्या प्रॉपर्टीज होंगी? यू कैन सी बैकग्राउंड कलर क्या है. लेट्स सी, हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर. तो आपके पास ऑप्शंस आ गए कि आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कौन सा कलर डालना है. यू वांट ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, एनीथिंग. लेट्स से आई एम टेकिंग दिस सियान. यू कैन सी हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर आ गया, करेक्ट? नाउ इफ आई वांट कि फॉन्ट हमारा बोल्ड हो, क्लिक ऑन दैट. फॉन्ट हमारा बोल्ड हो गया. If you want that your font should be italic too, just click on that. Your label's font is now italic. This is the font size. Same thing. If you want to increase that, let's say 20 कर दिया हमने. It is increased. Font typeface. ये हमारे जैसे जो font faces होते हैं ना, जो available हैं. Let's say हमने लिया है serif. So you can see your text will be in the serif part. Click on that. Okay. And now your font is on serif. If you want to change on this monospace, click on that and your text is on monospace. So these are the name of fonts. आपको जो भी अपना font name use करना है, आप वहां से click करके OK कर सकते हैं. ठीक है? And again, these are the different properties that we can use. Height, width, text आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आप text लिख सकते हो. This is a thing, क्योंकि label क्या होता है? Label का text is visible every time on a particular space where we have keep that label.
वो वहां से चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी है। सो वट एवर टेक्स्ट वी वॉन्ट टू कीप ऑन द लेबल प्लेस वी कैन राइट हियर। सो लेट्स से हम यहाँ लिख देते हैं कुछ भी, दिस इज माई फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप। See, your text is visible on the screen. Whatever is written, you can see on this screen, right? And this is the text alignment. आपको कहाँ रखना है? Left रखना है, center रखना है, या फिर right रखना है। Okay? Text color आपको कौन सा रखना है? Default is black. Default is black. But if you want to change your color of the text, let's say if we are doing blue, so you can see your text color is blue now. So this is how we can use any component from the palette part, and we can just see that on the viewer part, and we can change properties with the help of all components and properties part for any element. Okay, so this is your today's activity. Every one of you has to make one app. You just have to start today. आप क्या करोगे? आप MIT App Inventor open करोगे. Just start working on any project. Okay, create one app, name that, and उसमें at least 3 to 4 elements को keep put करके you have to change the properties of that. Okay, this is your first part, and we will be making one app with the help of MIT App Inventor. Okay.